گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں ماہ شوال میں ہونے والے تمام واقعات اجمالی طور پر بیان کیے تھے، اور ان کے اندر جو تفصیلی طور پر واقعہ بیان کیا تھا وہ تھا جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کے شب و روز کیسے گزرے، میرے آقا کے ساتھ نکاح کیسے ہوا، اور میرے آقا کے ساتھ رخصتی کے بعد کے لمحات ان کے کیسے گزرے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ ماہ شوال کا ایک دوسرا بڑا اہم واقعہ جو لکھنے والوں نے لکھا ہے وہ یہ کہ اسلام اور کفر کی دوسری بڑی جنگ جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، یہ ماہ شوال المکرم کے اندر واقع ہوئی تھی۔ شوال سن 3 ہجری کو یہ جنگ واقع ہوئی ہے احد کے میدان کے اندر۔ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ جنگ کیسے ہوئی، اس جنگ کے نتائج کیا ہوئے، میرے آقا نے اور آقا کے صحابہ نے اس جنگ کے اندر کیسے قربانیاں پیش کی، آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم کوشش کریں گے اسی حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں ذکر کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے، اسلام کے اندر تاریخ سیر کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو 2 نام دیے گئے۔ بعض جنگوں کو غزوہ کہا جاتا ہے اور بعض جنگوں کو سریہ کہا جاتا ہے۔ سریہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہ ہوئے ہو، آقا اپنے مقام پر رہے ہوں اور اپنے صحابہ کے ہاتھ میں کمان دے کر ایک فوج دستہ تیار کر کے میدان کے اندر روانہ کیا، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس کے اندر میرے آقا بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہو، میرے آقا نے خود قیادت کی ہو، صحابہ کی جماعت کو لے کر کے نکلے ہوں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد وہ جنگ ہے جس میں میرے آقا نے بذات خود شرکت فرمائی، یہ احد کے میدان کے اندر واقع ہوا۔ احد کا میدان یہ مدینہ منورہ کی اس وقت حدود کے اندر سے باہر تھا، آج کل تو اندر ہے، اس وقت مدینہ کی حدود سے 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر باہر نکل کے یہ ایک میدان تھا۔ اس کے چاروں طرف ایک پہاڑ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جس کو میرے آقا بڑی محبت کیا کرتے تھے، بلکہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ہے کہ احد پہاڑ یہ وہ پہاڑ ہے، میرے آقا فرماتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ بعض روایت کے اندر یوں بھی آتے ہیں، ایک مرتبہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے احد پہاڑ پہ گئے۔ اب احد پہاڑ کے اوپر جب چڑھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک زور سے احد پہاڑ پہ مارا اور مار کر کے یوں کہا، اسکت یا احدا، اے احد خاموش ہو جا، ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید اس وقت موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد سے بڑی محبت کرتے تھے، اور عموماً ہفتے میں 15 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا بغیر کسی کام کے بھی سپیشل مسجد نبوی سے نکل کے احد پہاڑ پہ چلے جاتے، احد پہاڑ کے اوپر بیٹھتے، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر محفل کرتے، بات چیت کرتے، پھر واپس آ جاتے۔ تو یہ احد پہاڑ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قلبی محبت تھی۔ آج بھی علماء فرماتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اگر مدینہ منورہ جانے کی سعادت عطا فرمائے، آپ دیکھیں جب دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے نا، یہ منظر تو ہم نے بھی دیکھا ہے، دھوپ کا وقت ہو اور احد پہاڑ کے اوپر سورج کی شعائیں پڑ رہی ہوں تو احد واپس ان شعاؤں کو سرخی کے اندر تبدیل کر کے دیتے ہیں۔ احد کے پہاڑ کی وہ جو چٹان ہے نا، اس چٹان کے اوپر سرخی نظر آتی ہے، شام تک سورج غروب ہونے کے وقت تک وہ پہاڑ سارا سرخی مائل نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قلبی محبت اس سے تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ بہرحال وہاں جا کے اس میدان میں جا کے آج بھی ایک قلبی سکون ضرور ملتا ہے۔ بدر کا مارکہ جس وقت ہوا، بدر کے مارکے کے اندر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ میں میرے آقا کے صحابہ نے 70 کفار مکہ کے سرداروں کو جہنم رسید کیا، جہنم کے اندر پہنچایا۔ تو 70 کفار مکہ کے سردار وہ جہنم واصل ہونے کے بعد
कुफारे मक्का के दिलों के अंदर एक आग भड़क उठी थी। और वो आग क्या थी? वैसे भी जमाना जाहिलियत था, इंतकाम लेने की आदत उस जमाने में बहुत थी। किसी को अगर कोई एक मारता ना तो उसके दिल के अंदर एक इंतकाम होता था, मैंने इससे डबल बदला लेना है। ये तो फिर मेरे आका की तरबियत थी ना, कि जिसने अपने सहाबा को ये समझाया था कि माफ करने वाला बड़ा होता है। कोई जुल्म कर दे, कोई तशद्दुद कर दे, कोई तकलीफ पहुंचा दे, उसको रब की रजा के लिए माफ करना सीखो। ये तो मेरे आका की तरबियत है। अलबत्ता उस जमाने के अंदर जब इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग हुई और कुफार को बड़ी जबरदस्त किस्म की शिकस्त हुई, तो उनके दिल के अंदर ये चिंगारी उभर चुकी। और इस चिंगारी को भड़काने वाला, सबसे ज्यादा किरदार अदा करने वाला अबू सुफियान है। अबू सुफियान की बीवी हिंदा है। अगरचे बाद में मुसलमान हो गए थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने बकायदा दारुल नदवा मक्कतुल मुकर्रमा में, वो खास मकाम जहां पे एक मीटिंग हुआ करती थी, मीटिंग की और मीटिंग करते हुए कहा कि बदर से वापसी पे आते हुए जो हम तिजारती काफिला लेकर आए थे ना, उस तिजारती काफिले में जितना प्रॉफिट होगा वो सारा के सारा प्रॉफिट और मुनाफे हम मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज अगर इसराइल अपनी प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा या हाफ हिस्सा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, कोई नई बड़ी बात नहीं है। ये इब्तदा से कुफार की बात चली आ रही है। ये मुसलमानों की बात है। उस जमाने में मुसलमान अपना सब कुछ इस्लाम पे लगा देते थे, और अब हाल ये है कि मुसलमान अपना 1% भी नहीं लगाते। कुफार की उस वक्त भी यही तरतीब थी, आज भी यही तरतीब है कि जो प्रॉफिट कमाना है उस प्रॉफिट को सारा के सारा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना है। एक मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर तय किया गया कि बाकायदा तौर पर मुसलमानों की जो रियासत मदीना मुनव्वरा बन रही है ना, इस रियासत को खत्म करना है। मेरे आका के साथ उस वक्त हमदर्दी की है और खूनी रिश्ता हमदर्दी करता भी है। मेरे आका के सगे चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में, उन्होंने भी हिजरत नहीं की। उन्होंने एक घुड़सवार को लिया, एक कासिद को तैयार किया और तैयार करके उसके हाथ एक रुक्का लिखा और रुक्का लिखकर मेरे आका को इत्तला की, ऐ मेरे भतीजे, ये इत्तला में सिर्फ भतीजे होने के नाते नहीं, ये इत्तला इसलिए कर रहा हूं कि आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आपके खिलाफ, आपके मुसलमानों के खिलाफ, आपके सहाबा के खिलाफ अबू सुफियान और यहाँ के बड़े बड़े कुफार ने बाकायदा तौर पर जंग की तैयारी कर ली है। अब आप अंदाजा करें कि बदर के मैदान के अंदर मेरे पैगंबर अपने सहाबा को लेकर गए तो सिर्फ 313 हैं। एक बात को जरा समझिएगा, अल्लाह मुझे समझाने की हिम्मत दे। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 है और मुकाबले के अंदर जो काफिर है वो 700 से ज्यादा है, यानी मुसलमान 1% और काफिर उसके मुकाबले में दुगना तिगना 2 गुना ज्यादा है। जब 1 साल के बाद उहद का मैदान सजता है तो अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर निकलता 3000 का, और इधर मेरे आका के पास जो तैयार होते हैं 1 साल के अंदर वो 1000 मुसलमान तैयार होते हैं। 1000 मुसलमान जब तैयार हुए, मेरे आका को जब पता चला कि लड़ाई तैयार है, जंग बिल्कुल तैयार है, आका अपने सहाबा को बुलाकर मशवरा करते हैं। ये मेरे आका की सुन्नत है। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, अहम काम हो, गैर अहम काम हो, मेरे आका अपने सहाबा को बुलाकर मशवरा करते थे। और बेशुमार मिसालें आपको ऐसी मिलेंगी कि जब मशवरा किया है, बहुत सारी जगह पर मेरे आका एक चीज पे राजी नहीं है, लेकिन अक्सरियत मशवरे के अंदर तय मामला कोई और हुआ है। मेरे आका ने अपनी मंशा छोड़ के सहाबा की राय को अहमियत दी है। गज़वा उहद के अंदर भी ऐसा हुआ है। इस्लाम और कुफ्र की दूसरी जंग हो रही है। मेरे आका अपने सहाबा से मशवरा करते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास इत्तला पहुंची है, अबू सुफियान और उसकी कौम 3000 का लश्कर लेकर तुम्हारे खिलाफ निकलने लगे हैं, वो मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं। मैं रब के हुक्म से जिहाद का ऐलान कर रहा हूं, कौन है जो मैदान में निकलेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही समझा जा सकता है जैसे कल पूरे पाकिस्तान के जय्यद उलमा, पूरे पाकिस्तान के बड़े उलमा, आपने मीडिया पे देखोगे, ऐलान कर रहे थे, मुसलमानों जिहाद फर्ज हो चुका, मुसलमानों जिहाद के लिए निकल खड़े हो। आप यकीन करें, कल से लेकर अब तक कोई दस्ता जाता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन मदीना मुनव्वरा में रब्बे काबा की कसम जब ऐलान होता था ना, हैया अलल जिहाद, फिर सहाबा ऐसे भी निकलते थे, वो जिनकी रात को शादी हुई है, शब-ए ज़ुफ़ात मनाई है, गुस्ल करने का भी इंतजार नहीं किया कि मेरे रब का, मेरे पैगंबर का हुक्म आ गया, अब तो जिहाद फर्ज हो चुका है, मैदान जिहाद में निकल खड़े हुए।
जिहाद करते करते शहीद हो गए, लाशों को इकट्ठा किया गया। जब लाश इकट्ठी करके पैगंबर के सामने आई, एक लाश के बाल भी गीले हैं, बदन भी गीला है। मेरे पैगंबर से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह शहीद तो काफी सारे हुए, ये एक सहाबी है जिनका नाम हजरत हंजला है, इनको देखे इनका बदन गीला क्यों है, इनके बाल गीले क्यों है? पैगंबर मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हंजला की गुज़िश्ता रात शादी हुई थी, ये शब्द जुफाफ के बाद घर से निकला था, इसने भी गुस्ल भी नहीं किया था। रब का हुक्म जब सामने आ गया, जामे शहादत नोश किया, मेरे रब ने इनको एजाज ये दिया कि इनको अपने आसमान के फरिश्तों से गुस्ल दिलवा दिया है। वो भी सहाबा थे, एक हम भी सहाबा हैं, बहुत सोने तो बयान ही नहीं सुना होगा। बयान सुनने के बाद फौरन फेसबुक का वो वीडियो या मीडिया पे जो बयान चला होगा ना, तो जिहाद का ऐलान सुनते ही कईयों ने तो ऊपर उड़ा दिया होगा। फिर वही जुमला कहा होगा जो आमतौर पे कहा जाता है, मौलवियों ने अपनी गल ले, फिर वही बात कही होगी, ये मौलवियों को अपने पेट का दर्द है। फिर कहा होगा, इन मौलवियों को आज सूझी है, हमारी तो जुबान हिलती है ना, हमारे तो सिर्फ अल्फाज निकलते हैं। आप मुझे बताएं कि वो जो जिहाद की फर्जियत का ऐलान कर रहे हैं, ना तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को कोई जरूरत है, ना मुफ्ती मुनीर साहब को कोई जरूरत है, फिर वो उम्मत के लिए इतना दर्द लेके इतनी ऊंची जगह पे खड़े होके उम्र के इस हिस्से के अंदर जोर लगा के उम्मत को क्यों बता रहे? शहीद तो गजा में हो रहे हैं ना, शहीद तो वहां पे हो रहे हैं ना, वो यहां पे क्यों जगा रहे हैं हमें और आपको बता रहे हैं? आप नहीं ना जा सकते, खुद नहीं ना जा सकते। जिस तरह वो अपनी कमाई का एक हिस्सा मुसलमानों के खिलाफ लगा रहे हैं, आप भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मुसलमानों की मदद के लिए लगा दो। वो इस्लाम के खिलाफ लगा रहे हैं, आप इस्लाम की बका के लिए लगा दो। वो जो वहां पे काम कर रहे हैं, आप जरा उनकी तकवीयत का हिस्सा बन जाओ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, 1000 सहाबा मस्जिद नबवी में इकट्ठे हैं, मशवरा करते हैं, मेरे सहाबा ये तो कन्फर्म है अब जंग तो होगी, क्योंकि वो आ रहे हैं, हम इकदाम नहीं, हमने दिफा करने। मशवरा ये है कि ये बताओ, मदीना मुनव्वरा की हुदूद के अंदर रह के जंग करनी है या मदीना से बाहर निकल के जंग करनी है? मशवरा सिर्फ इस बात पे है। अब समझिएगा जो मैं बात कर रहा हूं, हमारे यहां मशवरा लेना और मशवरा देना इसको समझे जाते कि मैं बड़ा हूं ना, मैंने एक बात क्या दी, सुना दी, सारों ने सुन ली और सुनने के बाद फैसला वही होगा, जो कि मैं बड़ा हूं तो मेरी बात को मानना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे मशवरा, कसरत राय क्या है, खैर किसमें है, मेरी बात को अगर नहीं पसंद, नहीं अहमियत है, दूसरे की बात को अहमियत है, दूसरा मशवरा ज्यादा है, आका उसी पर अमल करते। तो जो किबार सहाबा थे, बड़ी उम्र के सहाबा थे, निचोड़ किस्म के सहाबा उस वक्त मौजूद थे, बड़े तजर्बाकार, सबका मशवरा था, या रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा की बाउंड्री के अंदर रह के जंग करें, इसलिए कि जब अपने मकाम पर रह के जंग करेंगे ना, तो तारीख के अंदर इसलिए ये बात मौजूद है, हमने जो भी जंग मदीना के अंदर रह के लड़ी है, हमने कभी शिकस्त नहीं खाई है, हम मदीना के अंदर रह के जंग लड़ेंगे। लेकिन कुछ नौजवान सहाबा भी थे जिनका खून अभी गर्म था, और वो नौजवान सहाबा जिन्होंने बदर के मैदान के अंदर शिरकत अभी नहीं की थी, उनके दिलों के अंदर एक जज्बा था कि मैदान के अंदर निकलेंगे और कुफर को तिगनी का नाच नचाएंगे। उन्होंने मशवरा दिया, रसूलुल्लाह नहीं, हम मदीना के अंदर रह के जंग नहीं करेंगे, मदीना से बाहर निकल के जंग करेंगे। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती ख्वाहिश ये थी कि मदीना के अंदर रह के जंग की जाए, लेकिन चूंकि कसरत राय ये थी कि मदीना के अंदर नहीं रहना, बाहर निकलना है, आका उठ के अपने हुजरे के अंदर चले गए। आप में से जिन्होंने मस्जिद नबी देखी है या जिन्होंने वीडियोस देखी होगी, देखा होगा कि मेरे आका के मिंबर के बिल्कुल करीब आका का हुजरा है, जहां मेरे आका आज भी आराम फरमाए। जब मेरे आका दुनिया के अंदर धरती पे मौजूद थे ना, तब भी मेरे आका की रिहायश वही थी। पता चलता है कि इमाम की रिहायश और मिंबर में कितना फर्क है। दीन का काम अगर सही तौर पे लेना तो इमाम कितना करीब होगा। मेरे आका उठ के अंदर गए, जैसे अंदर गए फैसला नहीं हुआ, मेरे आका ने सब सहाबा से मशवरा किया कि क्या करना है, कसरत राय है, या रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल के जंग करेंगे। आका फरमाते तैयारी करो। जैसे मेरे आका अंदर गए, किबार सहाबा खड़े हुए और नौजवानों को कहने लगे, नौजवानों क्या हो गया, खैर उसमें होगी जो मेरे पैगंबर की राय है। आका की राय मदीना के अंदर रह के लड़ने की है, तो सब के सब मदीना के अंदर रह के तैयारी करो। जब उनको समझाया गया तो नौजवान कहने लगे, वाकई बात तो ऐसे ही है। मेरे आका अंदर से तैयारी करके, तलवार लगा के, असलहा सजा के, अब ये कौन असलहा लगा रहे, हमारा पैगंबर। अब अगर वक्त के उलमा असलहा लगाने का कह रहे हैं, वो दहशतगर्द नहीं है। अगर वक्त के उलमा जिहाद की फर्जियत का ऐलान कर रहे हैं, खुदा की कसम वो दहशतगर्द नहीं है।
पैगंबर ने असलहा लगाए, पैगंबर ने तलवार उठाई है, और यही गजवा है। मैं बताऊंगा आपको, अल्लाह ताला वक्त में हमारी बरकत देवे। मेरे आका अंदर गए, आका ने तलवार लगाई, तलवार लगा के जब बाहर निकले तो सब सहाबा एक जुबान होके कहते या रसूल अल्लाह मदीना मुनव्वरा के अंदर रह के जंग करेंगे। आका फरमाते हैं नहीं, तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, किसी नबी के लिए ये मुनासिब नहीं होता जब वो एक मर्तबा असलहा सजा ले, जब तक इस्लाम की सरबुलंदी ना करे वो असलहा कभी उतारा नहीं करता। अब जो फैसला हो गया वो मैदान के अंदर ही होगा। मेरे नबी सहाबा को लेकर निकले भी मस्जिद नबी के गेट से बाहर आए थे। तारीख में ऐसा लिखा है 300 मुनाफिकीन जो अब्दुल्लाह इब्न उबई के साथ थे सारे अलग हो गए। 1000 की तादाद के अंदर से 300, किस वजह से? हमारा मशवरा था कि मदीना के अंदर रह के जंग करनी है और आप तो मदीना से बाहर जा रहे हैं, चूंकि हमारा मशवरा नहीं माना गया इसलिए हम आपका साथ नहीं देंगे। मालूम हुआ मशवरे को जो बंदा ये मिजाज रखते हैं ना कि जो मेरा मशवरा है उसी को मानोगे, मानोगे तो साथ चलूंगा, नहीं मानोगे तो साथ नहीं चलूंगा, ये तरीका मुनाफिकीन का, मुसलमानों का नहीं है। मुसलमानों का तरीका क्या? पैगंबर की ख्वाहिश है मदीना में रह जंग करनी है, लेकिन सहाबा का मशवरा है मदीना में नहीं, मदीना से बाहर जाकर जंग करनी है। आका मशवरे पे पाबंद है, असलिया सजा के चल पड़े हैं। मस्जिद नबी से निकले हैं 700 सहाबा, उधर से 3000 का लश्कर लेकर के निकले हैं। यही गजवा था ना मेरे आका ने, अल्लाह ताला आपको मकाम दिया जबल रुमात, वो पहाड़ी जिसके ऊपर मेरे आका ने 50 तीर अंदाजों को खड़ा किया और हुक्म दिया था हम जंग के किसी हालत के अंदर हो आपने जबल रुमात नहीं छोड़ना। मेरे पैगंबर के सहाबा वहां खड़े, घुमसान की जंग है, जंग के अंदर, इसी जंग के अंदर मेरे पैगंबर के दंदान मुबारक शहीद हुए। इसी जंग के अंदर मेरे पैगंबर के चेहरे मुबारक के अंदर वो खोद की कड़ी कील मेरे आका के चेहरे मुबारक के अंदर चली गई। यही जंग थी जब मेरे आका के चेहरे मुबारक के अंदर से खून निकला था। यही जंग थी कि जिस जंग के अंदर मेरे आका के बारे में खबर उड़ी, और खबर क्या थी कि नाउज़ बिल्लाह मुहम्मद शहीद हो गए हैं। साहबा फरमाते हैं जब हमें आका की शहादत की खबर मिली है हम तो सारे के सारे परेशान हो गए। कुछ सहाबा जंग छोड़कर बैठ गए और कुछ जंगलों की तरफ निकलने का इरादा कर लिया। कुछ ने कहा नहीं, जब पैगंबर दुनिया में नहीं रहे हम भी इतना लड़ेंगे, या तो यहां से फतह करके जाएंगे या फिर अपनी भी शहादत करवा के जाएंगे। मदीना मुनव्वरा के अंदर बात पहुंचती है, 3 मील दूर या 4 मील दूर की बात है। एक औरत को पता चलता है जिसका हामिद भी जंग में शरीक है, भाई भी जंग में शरीक है, बेटा भी जंग में शरीक है, बाप भी जंग में शरीक है, चारों उसके सहारे जंग में हैं। पता चला कि मेरे आका शहीद हो चुके हैं। वो फौरन मदीना मुनव्वरा से निकली, औरत है, घोड़ा तैयार किया, पुष्ट के ऊपर सवार हुई, मैदान जिहाद की तरफ दौड़ा दिया। आगे से एक सहाबी आ रहे, सहाबी से आने वाले से पूछा माबाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आने वाले नौजवान बता मेरे पैगंबर किस हाल में है। मुझे पता चला कि औरत के मैदान में मेरे आका को शहीद कर दिया गया। आने वाले ने कहा जंग लश्कर बहुत ज्यादा था, जंग बहुत बड़ी है। आका का तो नहीं पता, हाँ यूं पता है कि तेरा नौजवान बेटा जो जंग में शरीक हुआ था वो शहीद हो गया और उसकी लाश फला जगह पर पड़ी है। आप अंदाजा करें, हमारी माँ को तो यह पता चल जाए ना मेरे लाल के पांव में कांटा चुभ गया, वो वहां चीखे मारना शुरू कर देती है। जिस माँ को पता चला हो कि जवान बेटा शहीद हो गया, उसकी कितनी चीख होनी चाहिए, कितना जोर से रोना चाहिए, मैं और आप सिर्फ अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन खुदा की कसम मेरे पैगंबर के सहाबिया रोई नहीं, हौसले के अंदर हैं। नौजवान बेटे की शहादत की खबर सुनकर फिर घोड़ा आगे बढ़ाया। आगे फिर एक सहाबी से मिलती है, पूछती है माबाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आने वाले बताओ मेरे पैगंबर किस हाल में है। कहा नहीं पता किस हाल में है, हाँ यूं पता है तेरा जो खामिद शरीक हुआ था शहीद हो गया और उसकी लाश फला जगह पर पड़ी है। यह क्या बात बिगड़े से? भाई की शहादत का भी पता चला, बेटे की शहादत का भी पता चला, खामिद की शहादत का भी पता चला, बाप की शहादत का भी पता चला। परेशान नहीं है, परेशान है तो सिर्फ इस बात पे कि मेरे आका किस हाल में है। आगे चल के एक साहबी बताते मेरे आका बिल्कुल ठीक है, आका को कुछ नहीं हुआ और मेरे आका फला जगह पर मौजूद है। सुनकर सबर नहीं किया, सीधी मेरे आका की महफिल में पहुंची और महफिल में पहुंचकर मेरे आका की जो कमली थी ना, मेरे आका की कमली का पल्लू पकड़ा और पल्लू पकड़ के छटक करके कहती है आका आप तक पहुंचने के लिए मैंने बेटे की शहादत की खबर सुनी, बर्दाश्त कर ली। आका खामिद की शहादत की खबर सुनी, बर्दाश्त कर ली। आका भाई की शहादत की खबर सुनी, बर्दाश्त कर ली। इसलिए कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल या मोहम्मद, या रसूलल्लाह आपको देखने के बाद कायनात की हर मुसीबत सहना मेरे लिए आसान हो चुकी है।
یہی وہ جنگ ہے نا کہ جس کے اندر پیغمبر کی صحابیہ نے بتایا سب سے زیادہ کوئی چیز اہم ہے تو میرے آقا کی عزت اور ناموس ہے۔ میرے دوستو، آج کے دور میں بھی آقا کی عزت اور ناموس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے اور میرے لیے اگر سب سے زیادہ کوئی چیز اہم ہے تو میرے آقا کی امت کے مظلوم مسلمان ہیں، جن کے اوپر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، جو آپ کی اور میری مدد کے لیے منتظر بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے اپنے چہرے کے اندر کیل برداشت کی ہے، اپنے دندان مبارک شہید ہونا برداشت کیے ہیں۔ آج وقت ہے، اب تو علماء کرام کا فتویٰ بھی ہے، اب وقت ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کا آپ نے اور میں نے تعاون کرنا ہے۔ تعاون کی سب سے پہلی صورت کہ کم از کم ان بدبختوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کرنا چاہیے۔ کریں گے سارے یا نہیں کریں گے؟ بائیکاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو مستند ادارے وہاں تک کسی قسم کا تعاون پہنچا رہے ہیں، جو جہاد کرنے والے وہاں پر جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جتنا ممکن ہم سے ہو تو ہم ان کے ساتھ تعاون ضرور کریں۔ کریں گے سارے یا نہیں کریں گے؟ یہ سوچ کے کرنا، آج اگر میں خود جہاد کو نہیں نہ جا سکتا، کم از کم اپنا مال تو بھیج دوں۔ مال نہیں نہ بھیج سکتا، کم از کم ان کی پروڈکٹ خرید کر ان کو مالی فائدہ تو نہ پہنچاؤں۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے بددعائیں تو کر لوں۔ یہ بھی نہ کیا، پھر سوال کے لیے تیار ہو جانا۔ کل کروز محشر اگر میرے پیغمبر نے آپ سے اور مجھ سے پوچھ لیا، اے میری امت کے نوجوان، بتا اس امت کو دین پہنچانے کے لیے میں تمہارا نبی ہو کر اپنے چہرے سے خون نکلوا لیتا ہوں، اپنے دندان مبارک شہید کروا لیتا ہوں، اپنے بدن پر تکلیف سہ لیتا ہوں، بتا میرے امتی خون تیرا قیمتی تھا یا تیرے نبی کا قیمتی تھا؟ دانت تیرے قیمتی تھے یا تیرے نبی کے قیمتی تھے؟ جوانی تیری قیمتی تھی یا تیرے نبی کی قیمتی تھی؟ ہمارے پاس یقیناً اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور غیرت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔